Good morning, students. We have started new chapter in accounts, and first sum we have solved in online class, and sum number 2 is your homework. You can see sum number 3 and 4 where expense detail is given. I have already highlighted it. Yes. So when expenses are given, the format will be change. Yes. You have to add separate column for cost and expense. Yes. And you can see in all these three sums, you have to prepare ledger accounts also. Yes. See, again I'm highlighting here preparation of purchase book and post and ledger. Yes. सो अभी तक मैंने आपको सिंपल परचेस बुक कैसे बनानी है वो आपको ऑनलाइन क्लास में एक्सप्लेन किया था. यस. बट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ सम में आपको लेजर पोस्टिंग भी करनी है. यस. एंड एक्सपेंसेस का भी कॉलम मेंटेन करना है. सो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन सम नंबर 3 and sum number 2 and 4 is your homework. So understand third sum properly. From the following transaction of Kamal, prepare purchase book and post in ledger. Now यहाँ पे आपको purchase book बनानी है and you can see in transaction on 1st April and 30th April freight charges is given. जब आपको एक्सपेंस की डिटेल दी है तो आपको एक्सपेंस और कॉस्ट के लिए सेपरेट कॉलम मेंटेन करना पड़ेगा. सो जो मैंने आपको ऑनलाइन क्लास में परचेस बुक एक्सप्लेन की थी वैसी ही है, सिर्फ थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज हो जाएगा. सो फर्स्ट वी विल प्रिपेयर परचेस बुक. I have already prepared the format here. This is sum number 3. You have to give title in the books of Kamal, and then we are preparing purchase book. So you have to write purchase book, and this is the format. First column date, particulars, then invoice number, then ledger folio, then details. Now rest columns will be added here: cost, freight charges, and total. Yes. Now see, all transactions are of 2020 April. So we will record date in the column of date. So here 2020 and month April. Now you can see the first transaction purchased from Videocon India Limited, Kolkata, 30 color TVs at 15,000 each, less trade discount 10% plus freight charges 2,000. Now यहाँ पे हमने वीडियोकॉन इंडिया लिमिटेड से हमने कुछ परचेस किया है. यहाँ पे बोला नहीं है कि हमने कैश पे किया. सो इट इज़ क्रेडिट परचेस, एंड क्रेडिट परचेस हम परचेस बुक में रिकॉर्ड करते हैं. यस. सो हियर वी हैव टू रिकॉर्ड. सो in this format you have to write date 1, then we are purchasing from Videocon India Limited. So here Videocon India Limited, and it is from Kolkata. Now here we are purchasing only TVs. So you have to mention here 30 color TVs at 15,000 each. And you don't have invoice number, so just keep this next column blank. Now here you have to multiply. पर टीवी का आपको कॉस्ट दिया है 15,000 एंड आपने 30 टीवीज परचेज की है. सो हियर 4,50,000. यस. अब यहाँ वीडियोकॉन इंडिया लिमिटेड से सिर्फ हमने टीवीज ही परचेज की है.
अब यहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट 10% दिया है, सो यू हैव टू calculate it and it will be deducted from this catalog price. So less trade discount 5%. Sorry, it is 10%. सो यहाँ पे जो 4,50,000 है उसी का ही 10% आपको लेना है, सो 45,000. Yes. Now this 45,000 will be deducted from this catalog price. So you will get 4,05,000. Yes. Now here freight charges 2,000 is given. So we have to add these charges. So here add freight charges 2,000, and by adding you will get 4,07,000. Now in remaining columns you have to show amounts separately. So यहाँ पे जो हमने goods purchase किए हैं उसकी जो price है after TD that is 4,05,000. Yes, and this पे freight charges जो है वो 2,000 है, and your total price is 4,07,000. Yes, so in this way you have to show. Then the next transaction as on April 15, purchase from Sony India Limited, Guwahati, 10 color TVs at 20,000 each less 10% trade discount. So this is also credit transaction, so it will be recorded in this purchase book. The next transaction date is 15. So in the column of date, you have to write 15. Then we are purchasing from Sony India Limited, Guwahati. So here, and we purchased 10 color TVs at 20,000 each. And you don't have invoice number, so यहाँ पे जब हम multiply करेंगे तो amount आएगी 2 lakhs. And see, it is already mentioned that we are getting trade discount 10%. Yes, तो ये 10% TDs पे impose होगा. So here less trade discount 10%. So 2 lakh का 10% आएगा 20,000. And after TD you'll get amount 1,80,000. Now there is no additional charges, so this is cost as well as total amount. Yes. The next transaction on April 20th, purchase from Music India Limited, Delhi, 10 music system at 10,000 each less trade discount 15%. So this is also credit transaction. It will be recorded here. So in the column of date 20, we are purchasing from Music India Limited, Delhi. So here Music India Limited, Delhi, and we purchased
10 music system at 10,000 each. So the total amount 10 multiply 10,000, 1 lakh. Now see, here we will get trade discount 15%. So 15% TD less हो जाएगा, less trade discount 15%. 1 lakh का 15%, 15,000. And after TD you will get 85,000. Now in this transaction, no expenses detail are given. So this is cost and this is total amount. The next transaction on April 30, purchase from Videocon India Limited, Kolkata, 5 washing machine at 15,000 each, less trade discount 20% and freight charges 1,000. This is also credit transaction, so it will be recorded here. In the column of date 30, we are purchasing from Videocon India Limited, Kolkata. So here and we purchased 5 washing machines at 15,000 each, and the total amount you'll get 75,000. Yes, 5 multiply 15,000, so 75,000. Now you can see when we are purchasing from Videocon India Limited, we are getting 20% TD. So ये TD less हो जाएगा. So here less trade discount 20%. 75,000 का 20%, you'll get 15,000. So this TD will be deducted from this 75,000. So you will get 60,000. Yes. Now some additional charges detail is given. Freight charges rupees 1,000. So this will be added. Yes. So add freight charges 1,000. Now the amount is 61,000. In the column of cost, we have to write 60,000 and 1,000 is freight charges, and total amount of purchase from Videocon India Limited is 61,000. After recording all the transaction, you have to make total of last 3 columns. Cost, total हमने कितनी cost के goods purchase किए हैं, then additional charges जो भी freight charges है या कोई सम में आपको packing charges भी दिया होगा. yes, so उस charges के column का हम total करेंगे. then at the end last total हमने कितना purchase किया है वो. yes, यहाँ पे मैंने तीनों column का total कर दिया है. नाउ परचेस बुक कैसे मेंटेन करनी है दैट यू हैव लर्नड, बट अब परचेस बुक से लेजर पोस्टिंग कैसे होगी वो आपको सीखना है. यस, अब यहाँ पे पहले आपको एक जर्नल एंट्री पास करनी है जिसके बेस पे लेजर पोस्टिंग बहुत इजीली हो जाएगी. यस, अब यहाँ पे हमने जो लास्ट 3 कॉलम का टोटल किया है उसी के बेस पे जर्नल एंट्री होगी. यस, अब यहाँ पे मैंने जर्नल का फॉर्मेट बना के रखा हुआ है. सो यहीं पे ही मैं जर्नल एंट्री पास कर रही हूँ.
You can see here we have purchased goods of 7,30,000. यस, हमने इतने के गुड्स परचेस किए हैं. सो हमारा परचेस 7,30,000 का हुआ. यस, परचेस से गुड्स हमारी फर्म में आते हैं, सो परचेस अकाउंट डेबिट होता है. यस, सो हियर purchases account debit 7,30,000. यस, एंड 3,000 जो यहाँ पे एक्सपेंस दिया हुआ है, फ्रेट चार्जेस, ये हमारा एक्सपेंस है, हमने परचेस किया और ये एक्सपेंस हमें ही बेयर करना है. यस, सो एक्सपेंसेस विल बी डेबिटेड. यस, सो हियर freight charges account debit and the total freight charges 3,000. yes, हम टोटल की कॉलम का ही लिखेंगे. so 3,000. now here we are purchasing on credit basis, हम क्रेडिट पे परचेस कर रहे हैं. so we are not giving cash. जो सामने अलग अलग फर्म्स है जिससे हमने परचेस किया है, वीडियोकॉन इंडिया लिमिटेड, सोनी इंडिया लिमिटेड, म्यूज़िक इंडिया लिमिटेड, वीडियोकॉन इंडिया लिमिटेड कोलकाता, इन सब से हमने परचेस किया है. सो दे आर गिवर. यस, वो क्रेडिट पे हमें सप्लाई कर रहे हैं. यस, सो ये सारे अकाउंट्स क्रेडिट हो जाएंगे. सो टू you have to write the entire name. नाउ यहाँ पे दो ट्रांजेक्शन्स वीडियोकॉन इंडिया लिमिटेड की ही दी हुई है. सो वी विल राइट द टोटल अमाउंट. यस, दोनों की हम टोटल लिखेंगे. देन टू सोनी इंडिया लिमिटेड अकाउंट एंड टू म्यूजिक इंडिया लिमिटेड अकाउंट. अब टोटल वीडियोकॉन इंडिया लिमिटेड कोलकाता से हमने कितने का परचेस किया है. यू कैन सी द अमाउंट्स आई एम हाईलाइटिंग हियर. जो फर्स्ट ट्रांजेक्शन है उसमें अमाउंट है 4,07,000. एंड जो लास्ट ट्रांजेक्शन है उसमें अमाउंट है 61,000. So in all we purchase goods of 4,68,000. So here 4,68,000. Yes. Then Sony India Limited से हमने परचेस किया है 1,80,000 का. So here 1,80,000. And we purchased from Music India Limited 85,000. So here 85,000. You can make total and you can check. The amounts must be equal to the amounts debited. Debit कितना हुआ है 7,33,000. So जो भी हमने क्रेडिट किया है उसका टोटल भी इतना ही आएगा. Yes. अब जर्नल एंट्री के बेस पे लेजर पोस्टिंग सिंपल हो जाएगी. सो यहाँ पे आपको परचेस अकाउंट डेबिट हो रहा है, फ्रेट चार्जेस डेबिट हो रहा है. सो यू हैव टू प्रिपेयर दीज टू अकाउंट्स. एंड अदर पार्टीज दोज हु आर गिवर, यस, जो हमें क्रेडिट पे गुड सप्लाई कर रहे हैं, वीडियोकॉन इंडिया लिमिटेड, सोनी इंडिया लिमिटेड, म्यूज़िक इंडिया लिमिटेड, उनके भी अकाउंट्स बनेंगे. यस, जैसे हम लेजर पोस्टिंग करते थे जर्नल के बेस पे, यहाँ पे हमें ये परचेस बुक के बेस पे करनी है. यस, सो मैंने यहाँ पे फॉर्मेट्स बना दिए हैं. आई एम जस्ट राइटिंग ऑल दी नेम्स. यस, जो भी अकाउंट्स हमें बनाने हैं उसके मैं नेम्स लिख देती हूँ. सो हियर
purchases account. This is debit side and this is credit side. Date, particulars, एंड लेजर में JF आता है, जर्नल फोलियो नंबर. देन अमाउंट, अगेन डेट, पर्टिकुलर्स, JF एंड अमाउंट. नाउ ये कॉलम्स के जो हेड है वो मैं हर अकाउंट में नहीं लिख रही हूँ. देन परचेज के बाद है फ्रेट चार्जेस. So freight charges account. This is debit side and this is credit side. And उसके अलावा जो भी लेजर्स बनेंगे जिससे हम परचेस कर रहे हैं वो सारी फर्म्स के अकाउंट बनेंगे. So here Videocon India Limited, this is debit side and credit side. Yes, so these accounts will be prepared here. Now how you have to record all the transactions here. So उसके लिए आपको ये जर्नल एंट्री जो मैंने पास की है उसके बेस पे भी आप कर सकते हो, या डायरेक्ट जो आपके पास टोटल दिए हुए हैं जो आपने हर कॉलम का टोटल किया है उसके बेस पे भी हो सकता है. अब यहाँ पे परचेस और फ्रेट चार्जेस उसकी सब डिटेल्स जो भी उसकी डिटेल है किससे कितना परचेस किया है वो तो परचेस बुक से हम ढूंढ सकते हैं. यस, सो यहाँ पे जब हम लेजर पोस्टिंग में रिकॉर्ड करेंगे, लेजर पोस्टिंग करेंगे, तब हम डायरेक्ट टोटल से ही रिकॉर्ड करेंगे. अगेन आई एम रिपीटिंग, किससे कितना परचेस किया है वो ऑलरेडी परचेस बुक में डिटेल में लिखा हुआ है. यस, सो यहाँ पे परचेस और फ्रेट चार्जेस, यस, जो हमारे एक्सपेंसेस है जो डेबिट होते हैं ये हम डेबिट साइड तो रिकॉर्ड करेंगे, बट हमें सेपरेट एक एक पर्सन से कितना परचेस किया वो रिकॉर्ड करने की ज़रूरत नहीं है. हम डायरेक्ट टोटल रिकॉर्ड करेंगे. सो यहाँ पे परचेस का टोटल है 7,30,000. सो 7,30,000. यस, एंड टोटल जो फ्रेट चार्जेस है वो है 3,000. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, परचेस और फ्रेट चार्जेस जो हमारे एक्सपेंसेस हैं वो डेबिट साइड आएंगे. सो हम डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे. नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट यू हैव टू राइट हियर इन द कॉलम ऑफ पर्टिकुलर्स. यस, नाउ यहाँ पे पर्टिकुलर्स में आप डायरेक्ट टोटल लिख रहे हो. सो आपको यहाँ पे लिखना है टू सन्ड्रीज एज पर परचेस बुक. And the same way here, to sundries as per purchase book. And we are doing this ledger posting on last date, so I forgot to write date here.
2020 अप्रैल 30। इस मंथ के बाद हम लेजर पोस्टिंग कर रहे हैं। सो ये अप्रैल मंथ की परचेस बुक है एंड उसकी हम लेजर पोस्टिंग कर रहे हैं। सो सेम डेट विल बी रिकॉर्डेड हियर। तो परचेस एंड फ्रेट चार्जेस में कैसे रिकॉर्ड करना है दैट आई एक्सप्लेन यू। इज़ वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, यहाँ पे एज पर परचेस बुक के साथ आप लिख सकते हो कि कौन से मंथ की परचेस बुक से आपने ये अमाउंट यहाँ पे पोस्ट किया है। सो फॉर अप्रैल 2020। Now what about other firms, those who are giver? Yes, जो हमें फर्म क्रेडिट पे कुछ गुड्स सप्लाई कर रहे हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वीडियोकॉन, सोनी, म्यूज़िक इंडिया, ऑल थ्री फर्म्स आर गिवर। यस, तो ये सारे होते क्रेडिट हैं। यस, तो जब हम इनकी लेजर पोस्टिंग करेंगे तब भी हम क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। यस, अब तीनों फर्म्स में अगर मुझे रिकॉर्ड करना है तो इन तीनों फर्म में मैं रिकॉर्ड तो क्रेडिट साइड करती हूँ, बट वी आर रिकॉर्डिंग डिटेल ऑफ ऑपोजिट। यस, ये क्रेडिट हो रहा है तो डिटेल तो डेबिट की आती है। यस, सो इन तीनों के अकाउंट में आएगा तो क्रेडिट साइड ही, बट डिटेल हम ऑपोजिट लिखेंगे, परचेस एंड फ्रेट चार्जेस। अब जिसमें परचेस है, जिसमें फ्रेट चार्जेस है, वो हम रिकॉर्ड करेंगे। जिसमें सिर्फ परचेस है वहाँ पे हम सिर्फ परचेस रिकॉर्ड करेंगे। यस, सो फ्रेट चार्जेस जो है वो सिर्फ वीडियोकॉन इंडिया लिमिटेड में है। सो पहले मैं आपको सोनी इंडिया लिमिटेड का और म्यूज़िक इंडिया लिमिटेड का बता देती हूँ कैसे आपको लेजर पोस्टिंग करनी है। सो सोनी इंडिया लिमिटेड से आपने परचेस किया है 1,80,000 का। यस, उसमें फ्रेट चार्जेस भी नहीं है, यू कैन चेक फ्रॉम परचेस बुक। सो ये 1,80,000 यहाँ पे हम रिकॉर्ड करेंगे। So here 2020 April, and from Sony India Limited from Guwahati, we purchased goods of 1,80,000. Yes, 1,80,000 के हमने goods purchase किए हैं। So यहाँ पे 1,80,000 आएगा, and here by purchases account. Now the most important, जब हम परचेस बुक में परचेस अकाउंट में एंड फ्रेट चार्जेस अकाउंट में जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तब हम टोटल से रिकॉर्ड करते हैं। सो यहाँ पे आप लास्ट डेट लिख रहे थे। यस, बट यहाँ पे आपको सेपरेट ट्रांजेक्शन की डेट दी हुई है। सो अकॉर्डिंगली आपको डेट के कॉलम में रिकॉर्ड करना है। हमने सोनी इंडिया लिमिटेड से 1,80,000 के जो गुड्स परचेज किए थे उसकी डेट है 15। यस, तो यहाँ पे डेट आ जाएगी 15। यस, देन सेम वे यू हैव टू पोस्ट अमाउंट इन म्यूज़िक इंडिया लिमिटेड। जो म्यूज़िक इंडिया लिमिटेड फ्रॉम दिल्ली हमने परचेज किया है 85,000 का, उसमें भी फ्रेट चार्जेस नहीं है। सो सिंपली आपका आएगा 85,000 हियर बाय purchases account, and the date of purchase is 20. Yes, now the most important thing, how to record in Videocon India Limited कोलकाता अकाउंट। ये सब यहाँ पे हमने वीडियोकॉन इंडिया लिमिटेड फ्रॉम कोलकाता से हमने 2 बार परचेस किया है। सो जब हम लेजर पोस्टिंग करेंगे तब भी 2 पार्ट में आएगा। यस, लाइक हियर year is 2020 and month April. First we purchased on first date, so एक बार लेजर पोस्टिंग फर्स्ट डेट की आएगी और दूसरी बार हमने जब 30 को परचेस किया है
सो तब की भी लेजर पोस्टिंग आएगी। यस, ट्वाइस यू हैव टू पोस्ट। अब यहाँ पे फ्रेट चार्जेस आपको सेपरेटली दिए हुए हैं। इट मीन्स जो हमने परचेज किया है वो 4,05,000 का है और 2,000 फ्रेट चार्जेस है। सो दोनों आपको सेपरेटली लिखने हैं, 4,05,000 एंड 2,000। यस, एंड यहाँ पे आ जाएगा बाय परचेज अकाउंट एंड बाय फ्रेट चार्जेस अकाउंट। इस तरह से अगर किसी फर्म से, किसी पर्सन से हम कुछ परचेस कर रहे हैं और साथ में कुछ एडिशनल एक्सपेंस है तो उसकी लेजर पोस्टिंग में आप दोनों लिखोगे। यस, क्योंकि जैसे मैंने आपको जर्नल के बेस पे आपको एक्सप्लेन किया था, हम इन तीनों फर्म में रिकॉर्ड तो क्रेडिट साइड कर रहे हैं क्योंकि ये क्रेडिट हो रहा है, दे आर गिवर, बट हम डिटेल हमेशा ऑपोजिट लिखते हैं। यस, सो यहाँ पे डेबिट हो रहा है परचेजेस एंड फ्रेट चार्जेस। अब जिसमें फ्रेट चार्जेस नहीं है वहाँ पे हम सिर्फ परचेज रिकॉर्ड करेंगे, पर जिसमें फ्रेट चार्जेस दिया है वहाँ पे आपको फ्रेट चार्जेस भी रिकॉर्ड करना पड़ेगा। सेम डेट अगर 30 को हम देखें तो वीडियोकॉन इंडिया लिमिटेड से हमने परचेज 60,000 का किया है एंड 1,000 फ्रेट चार्जेस है। सो सेम यू हैव टू रिकॉर्ड हियर 60,000 and 1,000. 60,000 is for purchase, so by purchases account, and 1,000 is for freight charges, so by freight charges account। इस तरह से आपको सब्सिडरी बुक जो हमने परचेस बुक बनाई उससे लेजर पोस्टिंग करनी है। यस, जब आप लेजर पोस्टिंग कर रहे हो यस, तब आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। जैसे परचेसेस से गुड्स हमारे पास आ रहे हैं यस, तो वो डेबिट ही होता है। सो एट दी एंड यू हैव टू चेक कि ये परचेस है तो आपका डेबिट साइड पे ही रिकॉर्ड किया हुआ होगा। फ्रेट चार्जेस जब हम परचेस कर रहे हैं तो ये हमारा एक्सपेंस है, डेबिट साइड ही होगा। ये तीनों फर्म हमें क्रेडिट पे कुछ सप्लाई कर रहे हैं गुड्स, सो दे आर गिवर, क्रेडिट होगा। यस, सो क्रेडिट साइड ही रिकॉर्ड होना चाहिए। यस, at the end you have to check these things. So this way you have to solve sum where you have to prepare purchase book as well as you have to prepare ledgers. Yes, and you don't have to make total of these ledgers and you don't have to find closing balance. Simply आपको सिर्फ लेजर पोस्टिंग करनी है। एंड यस, यहाँ से आपकी लेजर स्टार्ट हो रहे हैं, लेजर बुक है। सो एट दी टॉप यू हैव टू राइट लेजर ऑफ कमल। यस, हम कमल की परचेज बुक बना रहे हैं, सो लेजर ऑफ कमल। सो इस तरह से आपको सम करना है। आई होप ऑल द पॉइंट्स ऑफ preparation of purchase book with expense and their ledger posting is clear to you. If you have any doubt, you can contact me.